हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सजादवानी। आज हम बात करेंगे अबाउट द पीनियल ग्लैंड। अभी तक हमने एंडोक्राइनोलॉजी में द इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा है, हार्मोन्स पढ़े हैं, हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है। उसके बाद आई स्टार्टेड विद द हाइपोथैलेमस। आई टोल्ड यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस एंड द हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। नाउ विल डील विद द पाइनियल ग्लैंड। मैंने पाइनियल ग्लैंड इसलिए उठाया बिकॉज द हाइपोथैलेमस एंड द पाइनियल ग्लैंड बोथ आर लोकेटेड इन द ब्रेन, सो आई एम स्टार्टेड फ्रॉम। ठीक है, तो दिस पाइनियल ग्लैंड, जैसा कि मैंने बोला, द पाइनियल ग्लैंड इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन ब्रेन में है। ठीक है, तो पाइनियल ग्लैंड को हम पाइनियल ग्लैंड के अलावा, इसकी प्रोनाउंसिएशन पीनियल ग्लैंड भी है और पाइनियल ग्लैंड है, इसको हम पाइनियल ग्लैंड के अलावा पाइनियल बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पाइनियल बॉडी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है विच इज नोन एज एपिफाइसिस cerebri. So the pineal gland, it is also known as the pineal body, it is also known as the epiphysis cerebri. इसका और एक नाम है which is known as coronium. ठीक है, so the first thing you have to remember about the pineal gland is the name of the pineal gland. It's the pineal gland or the pineal body or the epiphysis cerebri or the coronium. इसको epiphysis cerebri क्यों कहते हैं और pineal body क्यों कहते हैं? इसको pineal body इसलिए कहते हैं because this name pineal body, it has been derived from the Latin word pinea, and pinea it means pine, cone. ठीक है, जो इसकी shape है, its shape is like the, जो कोन होता है वैसी ही शेप है इसकी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पाइनियल बॉडी और पाइनियल ग्लैंड। इसको एपिफाइसिस सेरेब्राई क्यों कहते हैं? सेरेब्राई और सेरिब्रम, इट मीन्स द ब्रेन, इट मीन्स द, ठीक है। एंड कल मैंने आपको बोला हाइपोफाइसिस मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड, फाइसिस मीन्स एक्चुअली नेचर। तो हम कहते हैं दिस इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे वाला जो ग्लैंड है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। हाइपो मीन्स नीचे, ठीक है, and a gland which is over the hypothalamus, that is known as epiphysis, because the pineal gland it lies above the hypothalamus. वो कहाँ है मैं आपको इसके लोकेशन में बताऊंगा। So the first thing about the pineal gland is the name of the pineal gland. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम बात करेंगे origin of pineal gland की, because pineal gland is the part of the brain and the part of the brain, every part of the brain is derived from the ectoderm. So pineal body इसका origin क्या है? It is derived from न्यूरल ectoderm. ये आप यहीं पे याद रखेंगे because most of the parts of the central nervous system they are derived from the ectoderm layer. ठीक है, तो pineal gland it is derived from the neural ectoderm. ये आप यहीं पे याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे about the location of pineal gland. तो pineal gland की लोकेशन इस नाम में ही है। You have to, in biology you should remember the names. Names में आपको हिंट मिलती है because I told you it is epiphysis cerebri. It is located in the cerebri means in the brain, and epi means ऊपर, hypothalamus के ऊपर है। कहाँ है? It lies in, जैसा कि मैंने कल डायग्राम में दिखाया था आपको, say if this is brain, तो मैंने बोला था if here we have the hypothalamus, hypothalamus के नीचे pituitary है, hypothalamus के ऊपर there is a round body which is known as thalamus, और thalamus के यहाँ से we have the third ventricle। ठीक है, so pineal gland it lies above, ठीक है, above the thalamus on the back side of the third ventricle, means इसकी लोकेशन तकरीबन यहाँ पे है। ठीक है, so the location of hypothalamus it is present in the diencephalon part of the brain, जैसा कि मैंने कल hypothalamus में बोला, and it lies over the thalamus। ठीक है, it lies over the thalamus and behind the third ventricle। ठीक है, so this is all about the location of the pineal gland. So the pineal gland it is located in the diencephalon. ठीक है, it is located in the diencephalon of forebrain. कहाँ पे है? On the roof of third ventricle and on the back side of the third ventricle. ये आपको याद रखना है। ठीक है, I hope यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, हम पाइनियल ग्लैंड को सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स में काउंट करते हैं। व्हाट आर सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स? The pineal gland is a
वेंट्रिकुलर ऑर्गन, जिसको हम CVO कहते हैं। व्हाट आर सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स? सर्कम मीन्स राउंड, किसी चीज के इर्द गिर्द। वेंट्रिकुलर मीन्स वेंट्रिकल, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल पे कुछ जो ऑर्गन्स हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं या कुछ बॉडीज हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं अराउंड द थर्ड वेंट्रिकल, दे आर नोन एज ए सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन। और इन ऑर्गन्स की एक खुसूसियत है, ये आपको याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB जिसको कहते हैं, ठीक है। द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये एक ऐसा बैरियर है विच सिलेक्टिवली परमिट्स ओनली फ्यू थिंग्स, ठीक है। जो हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के मैक्सिमम चीजों को रोकता है, उनको ब्रेन की तरफ नहीं जाने देता। द ब्लड ब्रेन बैरियर, इट prohibits the entry of various solutes, pathogens and molecules from the blood vascular system into the cerebrospinal fluid। लेकिन जो ये circumventricular organs हैं around the ventricle, around the third ventricle, जिनमें pineal gland भी है, these are not isolated by the blood brain barrier। ये आपको याद रखना है, जो pineal gland है इसमें अच्छी खासी सप्लाई है of the capillaries which are well permeable to various solutes, ठीक है। and this circumventricular organ which is the pineal gland or pineal body, it is not separated by the blood brain barrier। ये आपको याद रखना है। मैं आपको बता रहा था about the circumventricular organs। तो pineal gland is a circumventricular organ and it has a high number of highly permeable vascular capillaries, ठीक है। इसमें बहुत सारी capillaries हैं which are highly permeable, so it is not separated by the blood brain barrier। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, this was all about the location of the pineal body। इसके बाद मैं बात करूंगा about the size and shape and color of the pineal body। ये आपको याद रखना है। सो जो पाइनियल बॉडी है और पाइनियल ग्लैंड है, इसकी शेप क्या है? इट इज ऑफ द शेप ऑफ पाइन कोन। मैंने पहले ही बोला, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पाइनियल बॉडी, ठीक है। रफली इट इज लाइक, इट इज कोनिकल, ठीक है, ठीक है। द शेप ऑफ पाइनियल ग्लैंड इज पाइन कोन, ठीक है। इट इज पाइन कोन शेप्ड ग्लैंड। और इसका साइज कितना हम कहते हैं? इट इज ऑफ द साइज ऑफ अ ग्रेन ऑफ राइस, ठीक है। It is of the size of a grain of rice, around 5 to 8 millimeters, ठीक है। और इसका कलर कैसे है? It is reddish gray in color। ये आपको याद रखना है, ठीक है। So this is about the shape, this is about the size and the color of the pineal gland। It is the pine cone shaped gland and it is of the size of grain of rice and it is reddish gray in color, ठीक है। I hope आपको यहाँ तक समझ आया होगा। Now we will talk about the histology of the pineal gland। तो pineal gland में क्या पाए जाते हैं? pineal gland में there are 5 types of cells, लेकिन हम 5 types की cells पे गौर नहीं करेंगे because we have to see pineal gland from the point of view of endocrinology। तो मैं ऐसे बताता हूँ, pineal gland में 5 types of cells हैं, but the most important cells are the pinealocytes or the pinealocytes, ठीक है। The pinealocytes जो pineal gland में हैं, they are the modified cells जिनमें एक सेल बॉडी होती है और कुछ आउटग्रोथ्स होते हैं, ठीक है। See, these are the pinealocytes, ठीक है। जो pinealocytes of the pineal gland, they are of 2 types। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। Pinealocyte type 1 and pinealocyte type 2। So there are 2 types of pinealocytes in the pineal gland, pinealocyte type 1 and pinealocyte type 2, ठीक है। जो pinealocyte type 1 है, इसमें जब हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं, आफ्टर स्टेनिंग दे अपीयर लाइट इन कलर एंड दीज दे अपीयर डार्क इन कलर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाईली डेंस स्ट्रक्चर्स इन pinealocyte 1 and in type 2 and lowly dense structures in pinealocyte type 1। So मैंने ये बोला कि the pineal gland contains many cells, there are 5 types of cells, लेकिन हम 5 types of cells की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे of the pinealocytes। The pinealocytes in the pineal gland, they are the modified cells with some projections and they are of 2 types। Number 1, pinealocyte type 1, they are also the light pinealocytes, and the pinealocyte type 2, they are the dark pinealocytes। जो लाइट पाइनोसाइट्स हैं, पाइनोसाइट्स टाइप 1, इनमें क्या देखा गया है?
they have the serotonin which gets converted into the melatonin, ठीक है, and which is released by these cells. While as in pinealocyte type 2 we have the melatonin जो पहले ही बना हुआ होता है which is then released. So मैंने ये बोला that pinealocytes are of two types. One is the pinealocyte type 1 and other is the pinealocyte type 2. Type 1 they are the light pinealocytes and type 2 they are the dark pinealocytes. And light pinealocytes में पहले serotonin बनता है, ठीक है. First they form the serotonin and it forms the melatonin that is released. But these they form melatonin, ठीक है, जो release होता है. I hope आपको ये histology of the pineal gland समझ आया होगा, ठीक है. We will talk about the hormones of the pineal gland. ये आपको याद रखना है. This is very important. The pineal gland it produces actually only one hormone, ठीक है, which is of importance, endocrine importance, which is known as the melatonin. मैंने पिछले लेक्चर्स में मेलाटोनिन का कहीं पे जिक्र किया है. यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट मैंने बोला था दैट मेलाटोनिन इट इज अ हार्मोन विच इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव. अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, पहला पॉइंट अबाउट मेलाटोनिन इज दैट मेलाटोनिन इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव. मैंने वहीं पे बताया दैट मेलाटोनिन इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एल ट्रिप्टोफैन, ठीक है. आपको आइडिया आया होगा ट्रिप्टोफैन इज एन अमाइनो एसिड. मैंने यहाँ पे एल ट्रिप्टोफैन लिखा, मैंने डी ट्रिप्टोफैन नहीं लिखा बिकॉज मेलाटोनिन इज फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम एल ट्रिप्टोफैन. यू मस्ट बी नोइंग दैट एल ट्रिप्टोफैन इज एन ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है. हम वहां डिटेल में नहीं जाएंगे. सो मेलाटोनिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम एल ट्रिप्टोफैन. एल ट्रिप्टोफैन इट फर्स्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीरोटोनिन. सीरोटोनिन को हम 5-HT भी बोलते हैं, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन भी बोलते हैं, ठीक है. एंड दिस सेरोटोनिन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेलाटोनिन, ठीक है. सो मेलाटोनिन इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, ठीक है. सो the L-tryptophan, the L is optical isomer of tryptophan gets converted into through a biochemical process into serotonin and this serotonin it is a neurotransmitter, ठीक है. हम इसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, नर्वस सिस्टम में इसकी बात करेंगे. एंड दिस सेरोटोनिन इट गेट्स कन्वर्टेड फाइनली इनटू मेलाटोनिन व्हिच इज अ न्यूरो हार्मोन, ठीक है. आई होप आपको समझ आया होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन. इसका नेचर क्या है. सो द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पाइनियल ग्लैंड इज द melatonin hormone and it is an amino acid derivative, ठीक है. And it is synthesized from L-tryptophan which first forms the serotonin 5-hydroxytryptamine and that gets converted into melatonin which is our neurohormone, ठीक है. So this melatonin it is an amino acid derivative, ये आपको याद रखना है. उसके बाद मैंने पिछले लेक्चर्स में बोला था मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बेसिस पे हम हार्मोन्स को डिवाइड करते हैं. बिकॉज इट्स एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव तो इसका रिसेप्टर कहां पे होगा. यस यू मस्ट बी नोइंग दैट इसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होगा, ठीक है. ये पहले ही बताया है. द रिसेप्टर्स ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स दे लाई ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. जो मेलाटोनिन का रिसेप्टर होता है दैट इज नोन एज मेलाटोनिन रिसेप्टर 1 and there is a second receptor which is known as melatonin receptor 2, ठीक है. So the melatonin it acts on those cells only which have these receptors, that is the melatonin receptor 1 and the melatonin receptor 2. So these melatonin receptor 1 and melatonin receptor 2 कहाँ पे पाए जाते हैं. ये हमारी बॉडी में बहुत सारी जगहों पे पाए जाते हैं बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है. इसके अलावा रेटिना में पाए जाते हैं, रेटिना ऑफ आई. इसके अलावा हमारे गोनैड्स में भी पाए जाते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट इज इन द CNS and most of the melatonin receptors are found in the central nervous system, in the cells of the central nervous system. So melatonin का receptor कहाँ पे, ये cell membrane पे होता है, ठीक है. So this is melatonin hormone, it goes to the cell membrane जहाँ पे इसका receptor होता है and the receptor is known as melatonin receptor, ठीक है. तो मेलाटोनिन रिसेप्टर्स होते क्या हैं आप यहाँ पे याद रखेंगे. एक आइडिया दूंगा. दे आर द G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. कभी और दिन की बात करेंगे, यहाँ पे मैं बस आइडिया दे रहा हूँ. सो द मेलाटोनिन रिसेप्टर्स आर द G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. दे आर द ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ठीक है, ठीक है. ये आप यहाँ पे याद रखें. कम से कम ये आइडिया आप रखेंगे अपने ध्यान में दैट देयर मेम्ब्रेन, देयर रिसेप्टर्स आर मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड द रिसेप्टर्स आर फाउंड इन
various cells of CNS, retina, gonad, etc. And these are the G protein coupled receptors. And in fact, the mechanism of action of melatonin also involves generation of certain enzymes, certain kinases, and it may also involve the second messengers. हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है. So मैंने क्या बताया? The hormone produced by the pineal gland is the melatonin, which is an amino acid derivative derived from L-tryptophan, and its receptors are cell membrane bound receptors. They are the G protein coupled receptors. ठीक है. अब हम बात करेंगे अबाउट द रिलीज ऑफ मेलाटोनिन. ठीक है. मेलाटोनिन इज रिलीज्ड बाय द पाइनियल ग्लैंड. क्यों रिलीज करता है? लेट्स अज्यूम दिस द पाइनियल ग्लैंड. तो होता क्या है, हमारी जो आंख है, हमारी आंख में वी हैव द रेटिना. ठीक है. सो व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द रेटिना और व्हेन देयर इज डार्कनेस, ठीक है, द सेल्स इन द रेटिना which are very sensitive to light, which are the light sensitive neurons, ठीक है, the light sensitive neurons in the retina, they sense the change in the light, ठीक है, change in the intensity of the light. So the light sensitive nerves in the retina वो क्या करते हैं? They sense this, ठीक है, when there is light or when there is dark. So they sense it, and the signal it is taken to the brain or the central nervous system जहां पे हमारा pineal gland पाया जाता है. ठीक है. So the light sensitive neurons in our retina, they take this signal in the dark hours and in the light in the day. They take this signal, they take it into the brain, and वहां पे they go to the pineal gland, and the pineal gland is stimulated or inhibited. So daytime में क्या होता है? Due to high exposure of light, क्या होता है? The pineal gland it is stimulated to produce melatonin. और रात को क्या होता है? Because of dark, the signal goes to pineal gland and it is inhibited from releasing melatonin. So at the daytime the melatonin secretions are high, and in the night the melatonin secretions are low. ठीक है. ये कैसे होता है? ड्यू टू द चेंज इन द लाइट. ठीक है. आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा. अब हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ द मेलाटोनिन. मेलाटोनिन का रोल क्या है? आप एक इंपॉर्टेंट रोल याद रखेंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मेलाटोनिन, दैट इट modulates or regulates the sleep pattern. ये आपको याद रखना है. That means this hormone melatonin, it regulates the sleep wake cycle. So melatonin का काम क्या है? The function of the melatonin, the sole function and the important function of melatonin is that it modulates the sleep pattern. ये आपका sleep pattern modulate करता है. ठीक है. आपकी the frequency of your sleep, ठीक है, आप कितनी बार सोएंगे, कितना सोएंगे, ठीक है, इट इज रेगुलेटेड बाय द मेलाटोनिन. सो आपका जो स्लीप वेक साइकिल है, इट इज मॉड्यूलेटेड बाय मेलाटोनिन. मींस इट रेगुलेट्स योर, आपने सुना होगा, द सर्कैडियन एंड सीजनल रिदम्स. So melatonin has an important role in the regulation of the circadian and the seasonal rhythms. It has an important role in the regulation of the sleep wake cycle. It has an important role in the modulation of the sleep pattern. ये आपको याद रखना है. This is a very important function of melatonin. So आपके NEET exams में पूछा जा सकता है, the hormone melatonin is released by pineal gland. और melatonin का रोल क्या है sleep wake cycle में? It has a role in the sleep pattern. ठीक है, modulation. ठीक है. सो दिस द फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन. मेलाटोनिन की दूसरी फंक्शन भी देखी गई है. पाइनियल ग्लैंड इट हैज एन एंटी गोनेडोट्रोफिक इफेक्ट. ये आपको याद रखना है. देखा गया है दैट शायद ये मेलाटोनिन जो है फ्रॉम द पाइनियल ग्लैंड इट गोज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ FSH एंड LH. कल ही मैंने बोला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दे आर रिलीज्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. देखा गया है दैट द हार्मोन फ्रॉम द पाइनियल ग्लैंड व्हिच इज द मेलाटोनिन इट हैज एन एंटी गोनेडोट्रोफिक रोल. इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ FSH एंड LH. देखिए अब आगे पढ़ेंगे दैट द
पाइनियल ग्लैंड इट ग्रोज अप टू द एज ऑफ 1 to 2 years। उसके बाद इसका जो ग्रोथ बंद हो जाता है, इट कंटिन्यूज टू रिलीज द हार्मोन्स, ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड इन द एडल्टहुड इट स्टार्ट्स कैल्सिफाइंग। इसमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है और जो इसका रोल है मेलेटोनिन रिलीज का वो कम हो जाता है। सो दैट प्रूव्स दिस फैक्ट, क्योंकि प्यूबर्टी तक द हार्मोन्स द FSH एंड LH उनका जो रिलीज है दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेलेटोनिन, ये उतना रिलीज नहीं होते हैं। उसके बाद जब कैल्सिफिकेशन होती है ग्लैंड की, दिस नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मेलेटोनिन इट इज स्टॉप्ड। जब मेलेटोनिन नहीं होगा तो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा इनके रिलीज पे, सो दे गेट रिलीज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनेडोट्रोपिन। तो मैंने ये बोला कि मेलेटोनिन आल्सो हैज एन एंटी गोनेडोट्रोपिक रोल इन ह्यूमन बीइंग्स। इट कैन डिक्रीज द रिलीज ऑफ FSH एंड LH इन ह्यूमंस, ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी। और ऐसा भी देखा गया है व्हेन द एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड, जब पाइनियल ग्लैंड रिमूव किया गया तो देखा गया दैट देयर वर द चांसेस ऑफ प्यूबर्टी व्हिच वाज वेरी अर्ली इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। देखा गया देयर वर द चांसेस ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी 18 ईयर्स पे आती, 14 ईयर्स पे आती, 13 ईयर्स पे आती, वो आ गई एट द एज ऑफ 2, 3 or 4 years। that thus proves that this pineal gland, the melatonin, it has an anti-gonadotrophic role। ये आपको याद रखना, and it is very important, ठीक है। So मैंने बोला that melatonin it has two important roles। First is the modulation of sleep and wake pattern, and second one is that it has anti-gonadotrophic role, ठीक है। तो कुछ एम्फीबियंस में देखा गया है इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेल स्किन कलरेशन। हम वहां नहीं जाएंगे, दैट इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस हियर बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। एंड फाइनली आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द पाइनियल ग्लैंड। ये मैंने पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूं दैट द पाइनियल ग्लैंड इट स्टार्ट्स कैल्सिफिकेशन। इसमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एट द एज ऑफ 1 to 2 years वहां तक ये ग्रो हो जाता है, उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है, बट इट कंटिन्यूज टू रिलीज द मेलेटोनिन। एंड व्हेन अ ह्यूमन बीइंग बिकम्स एन एडल्ट, उस टाइम पे इसकी कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स कैल्सिफिकेशन। जब ये कैल्सिफाई हो जाता है तो इससे मेलेटोनिन सिक्रीशन कम हो जाती है एंड इट डिमिनिशेस, सो इसका एंटी-गोनेडोट्रोपिक रोल भी कम हो जाता है। सो जो इसका स्लीप वेक पैटर्न है, इस पे इसका इन्फ्लुएंस जो है वो कंटिन्यू होता है, बट दिस इफेक्ट ये खत्म हो जाता है, ठीक है। ऑल्दो द मेलेटोनिन लेवल्स डिक्रीज और डिमिनिश, सो देयर एंटी-गोनेडोट्रोपिक रोल इज डिक्रीज्ड, लेकिन जो हमारा स्लीप वेक पैटर्न है उस पे इसका इन्फ्लुएंस रहता है बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन्स इन आवर रेटिना। इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्लीप एंड वेक पैटर्न, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन मेल मी ऑन sajadwani657@gmail। आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करें, जेनेसिस एकेडमी बाय डॉक्टर सजाद वानी ऑन यूट्यूब। आप आगे भी लेक्चर्स मैं बनाता रहूँगा, आप ये लेक्चर्स देखेंगे और आप मुझे अपना फीडबैक देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे होम।